So, good morning, everybody. I'm Dr. Shatayu Google from Orthopedics, and under the guidance of Dr. Vivek Bambu and Dr. Kishan Patel, you have been uh, destined to be taught fracture of the distal radius in ulna. So, basically, as you all might know, there are two bones in the forearm, the radius and the ulna. These are very important bones because primarily any limb, the proximal and distal parts of the limbs are very prone to getting fractured. Why? Because it is a normal human tendency to fall and experience a road traffic accident. So today we'll be learning about fractures of the distal radius in particular because it is one of the most common bones to get fractured. Now, introduction, the distal radius fractures represent approximately one-sixth of all the fractures that a human experiences. There are three main peaks of fracture distribution. Children aged 5 to 14 years because they're always playing and hopping around. Males aged under 50 years and females over the age of 40 years. Now, if you might want to throw light on this topic, females after the age of 40 lose a substantial amount of calcium from their body because there is a physiological process called menopause that goes around in the body of females. So once girls reach the age of menopause, there is approximately loss of 30% of calcium from the body. So any female over the age of 40 to 45 years that you experience in your OPD, you always have to prescribe medications that supplement calcium and vitamin D in the body. Now, distal radius fractures occur through the distal metaphysis of the radius. So as you all might know, there are long bones in the body and there are three parts of all long bones. If any one of you might want to tell me what they are. So anyone, what are the three parts of long bones? आप कौन से सेमेस्टर के हैं आप लोग? 6 सेमेस्टर के हैं. तो आपको पता होगा ना फाइसेस होता है. तो कौन से फाइसेस होते हैं? हाँ, खड़े होके बोलिए. एंड डायफाइसिस. तो एपीफाइसिस किधर होता है बोन में? कहाँ? ओके, उसके बाद मेटाफाइसिस. आपने कहीं देखा होगा, आप आंसर दे दो, कहीं पढ़ा होगा, कोई इमेज देखी होगी. कहाँ पे? कॉर्टेक्स में. ओके, अब जैसे मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊँ. तो सपोज फॉर एग्जांपल ये बोन है. तो इसमें एपीफाइसिस किधर है, मेटाफाइसिस किधर है, डायफाइसिस किधर है? तो कोई भी बोन जो आर्टिकुलर सरफेस बना रही है ना, जैसे ये अपना रेडियस है. अभी अगर आप डिस्टली इसको देखो तो जो सबसे डिस्टल पार्ट रहता है वो एपीफाइसिस होता है, वहाँ से बोन ग्रो करती है ना. मेटाफाइसिस जो है, मेटाफाइसिस ऊपर का जो ब्रॉडेंड पार्ट रहता है बोन का, दैट इज द मेटाफाइसिस. मेटाफाइसिस का इंपॉर्टेंस क्या रहता है कि उधर कॉर्टेक्स जो है बोन का, जो बोन को स्ट्रेंथ देता है, वो पतला होता है. पर मेटाफाइसिस में जो बोन है वो कैंसरस बोन रहती है जो आपके ग्रोथ में हेल्प करती है ना. ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उनकी एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होती है. और जो बोन का जो लॉन्ग शाफ्ट होता है, जो सबसे हार्ड पार्ट होता है बोन का, वो डायफाइसिस रहता है ना. तो इट इज़ अ हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बीच में बोन मैरो रहती है वहाँ पे, है ना. तो आपको पार्ट्स पता होने चाहिए सबसे पहले बोन के. तो एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, है ना. बैठ जाइए. Now all the fractures that occur in radius and ulna, they are particularly important because they might include the articular surface of the bone. तो articular surface क्या रहता है, जब दो bones जुड़ती हैं तो उनके बीच में space रहती है ना. कोई भी joint आप देख लो, वो हर दो मतलब दो bones के बीच में ही बनता है. और उन दो bones के बीच में अगर space नहीं होगी तो आप movement नहीं कर पाओगे, है ना. सपोज अपना रिस्ट जॉइंट है तो इट इज़ एन आर्टिकुलेशन बिटवीन रेडियस अल्ना एंड अपन अपनी कार्पल बोन, है ना.
तो इफ़ द फ्रैक्चर इन्वॉल्व द आर्टिकुलर सरफेस, आपका सरफेस अगर डिस्टर्ब हो गया तो आपकी मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी तो आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे और फिर पेशेंट आपके पास आएगा, है ना। तो कोई भी फ्रैक्चर जो आर्टिकुलर सरफेस को इन्वॉल्व कर रहा है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, अपार्ट फ्रॉम फ्रैक्चर्स दैट डोंट इन्वॉल्व द आर्टिकुलर सरफेस, क्योंकि उसमें मेजरली फंक्शनल डिसेबिलिटी नहीं होती पेशेंट्स को, है ना। नाउ रेडिएशन अल्लाह इनके जब भी अपन इनको पढ़ते हैं तो मेन पार्ट अपने ये रहता है कि डॉर्सल और वोलर सरफेस अपन को देखना है। तो सिक्स सेमेस्टर में हो आप लोग तो आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, प्रॉक्सिमल क्या होता है, डिस्टल क्या होता है, वोलर क्या होता है, डॉर्सल क्या होता है। तो आई एम कंसिडरिंग यू माइट नो दिस, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो रेडियस में ये है कि तीन टाइप के नॉचेस रहते हैं। एक सिग्मॉइड नॉच है जहाँ पे अल्ना रेडियस से जुड़ती है, एक लूनेट सरफेस है और एक स्केफॉइड सरफेस है। स्केफॉइड एंड लूनेट और कार्पल बोन्स, है ना। तो स्केफॉइड, लूनेट, रेडियस और अल्ना, ये चार बोन्स मिलके अपनी रिस्ट की जॉइंट बनाते हैं, है ना। तो मेजरली इन इन पार्ट्स में ही फ्रैक्चर्स ज़्यादा होने के कारण कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आते हैं, बिकॉज ज़्यादा आर्टिकुलर सरफेस इन्वॉल्विंग बोन्स। Now TFCC, this might be a little bit more advanced for you, but still I'll try and explain you these things because uh, orthopedics is not only about bones, it's about the functional anatomy of the bones and it's more of physics. It's more about how heart structures are stabilized in the body. तो बॉडी में जितने भी बोन्स हैं वो लिगामेंट से भी सपोर्ट लेती हैं अपने फंक्शनिंग के लिए और मसल के टेंडन से भी सपोर्ट लेती हैं, है ना। तो देयर इज वन सच स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राइंगल फाइब्रो कार्टिलेजिनियस कॉम्प्लेक्स। तो ये लिगामेंट्स रहती हैं जो अपने रेडियस और अल्ना के को अलग अलग सरफेसेस पे ज्वाइन करके स्टेबिलिटी देती हैं, है ना। नाउ द TFCC consists of an articular disc, meniscus homologue, dorsal and volar radioulnar ligament, ulnocarpal ligament and ECU sheath, है ना। तो फॉर मेकिंग इट इजियर फॉर यू टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये TFCC है, ठीक है। ये अपना रेडियस है, ये अल्ना है, और आप अगर देखें तो इसके ऊपर 8 बोन्स रहती है, कार्पल बोन्स। तो आप लोग में से किसी को पता है कार्पल बोन्स किनको कहते हैं, क्या नाम है उनके, क्या काम है उनके? डज एनी वन ऑफ यू नो अबाउट एनी कार्पल बोन? कभी आपने सुना हो स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइकीट्रम, पिसिफॉर्म, सुना है आपने, है ना। तो ये बोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये जो आप देख रहे हैं, अब आप देखो तो ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये अपनी 8 कार्पल बोन्स है ना। इफ़ यू अगर लेमन टर्म्स में अपन इस क्लास को डिस्कस करें आपसे, तो ये कार्पल बोन्स आप देख रहे हो इतनी डिफ्यूजली प्लेस्ड है कि इनको सिर्फ लिगामेंट्स और किसी कार्टिलेज के बिना रख देना बहुत ही अजीब होगा, क्योंकि अपने आप स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगी। तो जो रेडियस और अल्ना है, इनको इनके साथ इनकी स्टेबिलिटी के लिए TFCC के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो TFCC बेसिकली होता क्या है, आप जो रेडियस और अल्ना देख रहे हैं इसके बीच में आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ना। दैट इज द आर्टिकुलर सरफेस बिटवीन द टू बोन्स, जो मैंने सिग्मॉइड नॉच के बारे में आगे बोला था, है ना। तो वो सिग्मॉइड नॉच पे अल्ना रेडियस के साथ जुड़ती है और यहीं पे TFCC होता है। तो TFCC क्या करता है, आप जब भी कोई चीज़ उठा रहे हो या आपके रिस्ट का मूवमेंट कर रहे हो, तो TFCC क्या इन दोनों बोन्स को भी स्टेबिलिटी देता है, प्लस ऊपर की जो कार्पल बोन्स हैं वो अगर आप देखो तो इन दोनों बोन्स पे बैठ रही हैं। अगर कोई लिगामेंट नहीं होगी बीच में तो वो बैठेगी नहीं, सीधी धंसेगी नीचे और आपको दर्द होगा। तो लिगामेंट इस चीज़ को स्टेबिलिटी देने के भी हेल्प करता है ना। अगर आप सोच रहे हो कि ये पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है या क्या पढ़ाया जा रहा है, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ऑर्थोपेडिक्स के कोई भी टॉपिक में अगर आप डीप में जाते हो तो आपको दो फायदे हैं। एक तो उसको समझना इजी होता है, अगर आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो तो उसको याद रखना इजी होता है, और आगे जाके आपके प्री PG के एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प होगा। और दूसरा ये कि आप में से कोई भी कभी सर्जन बनने का वो करे या किसी को ऑर्थोपेडिशियन बनना हो तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। इफ़ यू अंडरस्टैंड एन ऑर्थोपेडिक्स क्लास इजीली यू रिमेंबर इट फॉर लाइफ, है ना। तो दैट इज़ द एक्चुअल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्लास। तो गोइंग फर्दर TFCC ये है। अगर आपको थोड़ा और एडवांस में पढ़ाऊँ तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं रेडियो अल्नर फ्रैक्चर्स के।
तो 4 मेन क्लासिफिकेशन है, फ्रिकमैन, फर्नांडिस, मेलोनी और एओ, है ना। एओ इज एसोसिएशन ऑफ ऑस्टियोसिंथेसिस। जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा नॉलेज, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसोसिएशन है जो ऑर्थोपेडिक्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें काम करता है। तो आप ऑर्थोपेडिक्स के जो भी सबसे अच्छी चीज़ें देखोगे वर्ल्ड में, स्क्रूज देखो, प्लेट्स देखो, इम्प्लांट्स देखो, टेक्निक्स देखो, रिसर्च देखो, तो वो एओ करता है। तो आप वापस घर पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नाउ डिस्कसिंग द फर्स्ट वन, जो फ्रिकमैन क्लासिफिकेशन है, इसमें बेसिकली अपन 8 टाइप के फ्रैक्चर्स देखते हैं रेडियस और अल्ना में। तो अगर आप वो इमेज देखें और इसके साथ कोरिलेट करें तो शायद आपको आगे भी याद रहेगा फ्यूचर में, है ना। तो जो फर्स्ट वाला है वो है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर रेडियस फ्रैक्चर। अब अपन, आप सिर्फ फर्स्ट वाली इमेज को देखो तो वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर क्यों है? कैन एनीबडी थ्रो लाइट ऑन इट? उस इमेज पे वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर क्यों लग रहा है आपको? रेडियस का, उस इमेज में रेडियस का आर्टिकुलर सरफेस किधर है? जो सबसे ऊपर की साइड है, जो फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वो आर्टिकुलर सरफेस है। सो एनी फ्रैक्चर लाइन दैट इज पासिंग और टचिंग दैट आर्टिकुलर सरफेस विल बी अ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि आपका आर्टिकुलर सरफेस जा रहा है तो आपका जॉइंट का मूवमेंट बिगड़ रहा है ना। तो फर्स्ट क्लास है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर। सेकेंड वाला है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर रेडियल फ्रैक्चर विद एन अल्ना फ्रैक्चर। अब सेकेंड वाले में आप देखो तो पहले मैं आपको नहीं समझा पाया था, पर अब समझाता हूँ। वो जो अल्ना बोन है, वो जहाँ पे फ्रैक्चर हुई है उस पार्ट को अल्ना स्टाइलॉइड बोलते हैं ना। तो रेडियस और अल्ना दोनों में स्टाइलॉइड्स रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि इनमें मसल्स के टेंडेंस और लिगामेंट सब कनेक्ट होते हैं, है ना। जो थर्ड पार्ट है दैट इज एन इंट्रा आर्टिकुलर रेडियल फ्रैक्चर। यू कैन अप्रिशिएट इट बाय सीइंग द फ्रैक्चर लाइन दैट इज टचिंग द आर्टिकुलर सरफेस, है ना। बाकी के और 4-5 भी हैं जो मतलब अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि इतना ही है कि जैसे आप फिफ्थ और सिक्स वाले में देखें तो जो फ्रैक्चर लाइन है वो रेडियो अल्नर जॉइंट के पास जा रही है। अगर आप देखो तो जो वन ने सिग्मोइड नॉच अपन ने डिस्कस किया वहाँ पे जा रही है। तो अगर कोई पेशेंट इंस वाले क्लासिफिकेशन के साथ आपको प्रेजेंट करता है तो आपको क्लिनिकली पेशेंट में ये दिखेगा कि आप पेशेंट की जब रिस्ट ऐसे दबाओगे, है ना, मीडियल टू लैटरल, लैटरल टू मीडियल, आप कंप्रेशन दोगे तो उसको दर्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि मीडियल टू लैटरल ही वो रेडियो अल्नर लिगामेंट आती है और सिग्मोइड नॉच आता है। तो अगर वहाँ पे फ्रैक्चर लाइन पास हो रही है तो पेन प्रेजेंटेशन के साथ आएगा पेशेंट, है ना। अब ये सब क्लासिफिकेशन ठीक है, रहने देते हैं। एक एओ क्लासिफिकेशन है ऑर्थोपेडिक्स में। कुछ भी आपको एओ के रिलेशन में पढ़ने को मिले तो पढ़िए, क्योंकि इजी टू लर्न होता है, इजी टू रिमेंबर होता है एंड इट इज़ ऑथेंटिक, है ना। तो एओ क्लासिफिकेशन में ये है कि 3 पार्ट्स में अपन पढ़ते हैं रेडियल फ्रैक्चर्स को: एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, पार्शियल आर्टिकुलर और कंप्लीट आर्टिकुलर फ्रैक्चर, है ना। दिस इज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, बाद में इंटरेस्ट हो तो बाद में जाके इसको पढ़िएगा, है ना। नाउ बेसिकली किसी भी एक्सरे को आपको अप्रिशिएट करना हो तो ढंग से आपको एक्सरेज क्या होते हैं पता होना चाहिए, एक्सरेज कौन से व्यूज़ में लेते हैं पता होना चाहिए, कौन से टाइप की फ्रैक्चर में आप एक्सरे की बीम किधर से डालेंगे, आप उसको कैसे देखेंगे। तो ये सब आज अपन पढ़ेंगे, अपना मेन टॉपिक है आज का, है ना। तो एक्सरेज पर्टिकुलरली रेडियस अल्ना में अपन 2 पार्ट्स में लेते हैं। एक तो एपी व्यू लेते हैं, ठीक है, एपी इज एंटेरो पोस्टीरियर, और एक लैटरल व्यू लेते हैं, है ना। एपी व्यू में आप इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर बोन्स पे क्या फोकस करोगे कि आपकी डिस्टल 1/3 रेडियस और अल्ना दिखनी चाहिए एक्सरे में, है ना। आपकी सारी कार्पल बोन्स अच्छे से दिखनी चाहिए और ऊपर की मेटाकार्पल्स अच्छे से दिखनी चाहिए एपी व्यू में। लैटरल व्यू में आप क्या देखोगे कि आपकी जो रेडियो कार्पल जॉइंट है और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, ये सारे एक लाइन में होने चाहिए फॉर अ नॉर्मल एक्सरे। पहले अपन नॉर्मल एक्सरे डिस्कस करेंगे, है ना, उसके बाद अपन फ्रैक्चर्स में जाएंगे। तो फॉर एपी व्यू, फॉर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सर्फेसिस यू हैव टू असेस रेडियल शॉर्टनिंग और कम्बिनेशन, है ना। तो बेसिकली आप देखोगे, मैं आपको पहले नॉर्मल एक्सरे समझा रहा हूँ, तो जो रेडियस है उसमें और अल्ना में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? कभी भी आप एक्सरे असेस करोगे तो आपको हमेशा 99% ऑफ द केसेस में अल्ना की लेंथ रेडियस से शॉर्ट लगेगी, है ना। ये नॉर्मल रहता है, इसको अल्नर वेरिएंस बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, रेडियस का फ्रैक्चर होगा तो रेडियस की लेंथ कम हो जाएगी,
रेडियस की लेंथ कम होगी तो अल्ना क्या है, रेडियस से लॉन्ग दिखेगी आपको फ्रैक्चर में, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव अल्नर वेरिएंस, है ना। तो ये आपको एसेस करना है, ये फर्स्ट पार्ट रहता है। नेक्स्ट क्या है, अल्नर स्टाइलॉइड का फ्रैक्चर लोकेशन। तो अल्नर स्टाइलॉइड जैसे आप देख सकते हो, जो छोटा सा पार्ट निकल रहा है अल्ना से, वो अल्नर स्टाइलॉइड है। तो मोस्टली देखने नहीं मिलता, पर कभी कभी आप जो पेशेंट इन फ्रैक्चर से आते हैं उसमें अल्नर स्टाइलॉइड टूटा हुआ रहता है, तो लोग मिस कर जाते हैं उसको। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आप इमरजेंसी में जाओ या कहीं भी जाओ तो आप वो देख सकते हो उसको, तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ चलो हमने पढ़ा है तो यहाँ भी देखो। क्योंकि एक्सरे क्या है, बहुत ईजी होता है एक्सरे में फ्रैक्चर लाइन्स को मिस करना, बिकॉज व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू, आप उसको क्लिनिकली देख रहे हो, आप उसका एक्सरे करा रहे हो, तो आपका दिमाग वहीं देखता है जहाँ आपकी आंखें वहीं देखती हैं जहाँ आपके दिमाग ने सोचा होता है ना। तो ऐसे नहीं करना, अपन को ढंग से एक्सरे पढ़ना सीखना है तो आपको एक्सरे का हर एक पार्ट पढ़ना सीखना है ना। तो आप अल्नर स्टाइलॉइड पे भी ध्यान देना नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ एक्सरे लाइक दिस। फॉर इंट्राआर्टिकुलर सर्फेसिस यू हैव टू अप्रिशिएट द डिप्रेशन ऑफ द लूनेट फेसेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस टॉपिक में कि आपको कार्पल बोन्स के नाम पता होने चाहिए। तो देयर इज अ वेरी कॉमन एंड फेमस निमोनिक कॉल्ड शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, है ना। तो आप में से कोई भी है जो सारी कार्पल बोन्स को नेम कर पाए? बेसिकली 90% करेक्ट। तो इस निमोनिक को अच्छा याद रखा है आपने, पर ये है कि शी लुक्स टू प्रीटी, तो स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइकीट्रम एंड पिसिफॉर्म, है ना। एंड ट्राई टू कैचर इज ट्रेपीजियम, ट्रापेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमिड, है ना। तो रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि आगे एग्जाम्स में भी बहुत सारे पूछते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग टू लर्न, मतलब आपको बार बार इसको देखना पड़ता है ये 8 बोन्स को याद रखने के लिए, है ना। तो वंस यू रीड अबाउट इट आपको याद रहेगा। तो वेरी गुड, कार्पल बोन्स के नाम याद रहने चाहिए, जिससे क्या है कि आप कभी भी इन बोन्स में फ्रैक्चर देखो तो आप आपके सीनियर को बता सको या आप पेशेंट को बता सको, भाई तुम्हारी इस बोन में प्रॉब्लम है, तुमको ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो प्राइमरी थिंग फॉर एनी डॉक्टर और अपकमिंग बर्डिंग डॉक्टर इज टू नो व्हाट यू आर सीइंग, बिकॉज यू आर इन सच अ प्रोफेशन कि आपको लोगों को हमेशा समझाना ही पड़ेगा। तो हमेशा लोग आपके पास इसी इंटेंशन से आएंगे कि भाई इसको सब कुछ पता है और हमारी प्रॉब्लम यही सॉल्व करेगा। तो अगर आप लोग ही ढंग से अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आगे वाले को कोई फ़ायदा भी नहीं है। इट्स नॉट एथिकल ऑल्सो, इट्स नॉट गुड ऑन योर पार्ट ऑल्सो, है ना। और अपने खुद की भी कॉन्फिडेंस कम होती है ना। तो पढ़ना है अच्छे से। गैप बिटवीन स्केफॉइड एंड लूनेट फैसेट देखेंगे अपन। ये थोड़ा उसमें चला जाता है, इसको अपन स्किप करते हैं। लैटरल व्यूज में अपन क्या देखेंगे कि अभी तो आपको एक नॉर्मल एक्सरे दिख रहा है ना। तो अगर मैं आपको बेसिक टर्म्स में समझाऊं तो नॉर्मल रिस्ट के लैटरल एक्सरे में आपको सारी बोन्स एक लाइन में दिखेंगी। अगर ये लाइन आपको किसी भी पार्ट में या किसी भी फॉर्म में अगर डिस्ट्रक्टेड दिख रही है तो यू हैव टू थिंक अबाउट सम फ्रैक्चर दैट हैज अकर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। इंक्लिनेशन रहता है, अगर आपको कभी भी एक्सरे में रेडियस और अल्ना सेम लेवल पे उनके हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस जो वहाँ पे हैं अगर सेम लेवल पे दिख रहे हैं तो यू हैव टू डायरेक्टली थिंक दैट इट्स अ फ्रैक्चर, क्योंकि रेडियस जो है वो अल्ना के कंपैरिजन में एक इंक्लिनेशन पे रहती है ना। और लैटरल में भी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ आप देख रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, यहाँ पे सारी बोन्स एक लाइन में है, यहाँ पे वो लाइन डिस्टर्बेड है, तो देर इज सम प्रॉब्लम दैट हैज अकर्ड विद द पेशेंट, है ना। तो ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि लाइन में है या नहीं है, दैट इज द प्राइमरी थिंग। उसके बाद आगे जाके आप इसके बारे में पढ़ोगे कि भाई कौन सी लाइन देखनी है, क्या लाइन देखनी है, कौन सी बोन्स है, क्या गया है, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, है ना। तो यहाँ भी आप देख रहे हो इंक्लिनेशन के बारे में है। गोल्स क्या है अपने ट्रीटमेंट के? कोई भी पेशेंट जो रेडियस अल्ना फ्रैक्चर के साथ आ रहा है उसके ट्रीटमेंट के गोल्स अपने ये रहते हैं कि प्राइमरीली यू हैव टू प्रिजर्व द हैंड एंड रिस्ट फंक्शन। So if you think about it in a deeper aspect, आपका अगर रिस्क काम नहीं कर रहा है तो यू आर बेसिकली यू विल बी द मोस्ट अनहैप्पी पर्सन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि आपका अगर आप ध्यान दो तो दिन में 99% ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग यू आर इन्वॉल्विंग योर हैंड्स इन इट, है ना। आप किसी से मिल रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, पेन यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हाथ यूज़ होता ही है ना। तो प्रिजर्व करना है अपन को हैंड और रिस्ट का फंक्शन, नॉर्मल ऑसियस एनाटॉमी को रीअलाइन करना है। बट आपको ज़्यादा जानना हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रेडियस और अल्ना फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जिसको आप ट्रीट ना करो, प्रिजर्व ना करो, रिड्यूस ना करो तो भी आपका हाथ सही से काम करता ही है ना।
बोनी हीलिंग को प्रमोट करना है, अगर आप किसी भी बॉडी में किसी भी फ्रैक्चर को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो या तो वो नॉन यूनियन में जाएगा या माल यूनियन में जाएगा, है ना। पर अगर आप उनके आर्टिकुलर सर्फेसिस को सही से अलाइन कर रहे हो तो फिर बोन हीलिंग प्रमोट होती है ना। बोन हीलिंग कैसे होती है, आप लोग को ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में पता होगा, है ना, पढ़ा है कभी ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट, है ना। तो ये दोनों जो सेल्स हैं ये हेल्प करते हैं, पर इनके लिए फ्रैक्चर सही से अलाइन होने चाहिए, है ना। कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करनी। तो आप में से कोई भी है जो कोई भी 2 या 3 कॉम्प्लिकेशन बता सके किसी भी फ्रैक्चर के, बॉडी में कोई भी फ्रैक्चर होता है तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं उस पर्टिकुलर रीजन पे, पहले तो अपन डिस्कस करें, बाद में बॉडी के करेंगे। स्वेलिंग आती है, ओके। तो उससे क्या होगा? ठीक है, पैरालिसिस, ओके, बट पैरालिसिस, रीजनल पैरालिसिस को पैरालिसिस नहीं कहते, फंक्शनल डिसेबिलिटी हो जाएगी उस जगह की, है ना। अगर आपका फ्रैक्चर फ्रैगमेंट किसी वेसल को रप्चर कर रहा है तो वहाँ पे ब्लड लॉस होगा उस जगह पे, तो लोकल हीमाटोमा फॉर्मेशन होगा। हीमाटोमा फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे ब्लड ब्लड उस रीजन में जब लोकलाइज स्वेलिंग कर रहा है तो वो बाकी के स्ट्रक्चर्स को दबाएगा, क्योंकि नॉर्मली अपना हाथ ऐसा है, यहाँ पे आप कोई चीज़ अंदर पानी भर रहे हो, ब्लड भर रहे हो, कुछ भर रहे हो, तो दूसरे स्ट्रक्चर्स दबेंगे, दबेंगे तो आपको पेन होगा, है ना। अगर वो वैसे ही रह रहा है बहुत दिनों तक तो फिर वो नेक्रोसिस भी कर सकता है बोन की, या डिफ्यूज एट्रोफी भी कर सकता है ना। तो ये कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए अगर आप इस चीज़ को पहले ही रिड्यूस कर रहे हो, पहले ही आप इसको टारगेट कर रहे हो, तो पेशेंट बच सकता है काफ़ी चीज़ों से, है ना। एंड अलाउ अर्ली फिंगर एंड एल्बो रेंज ऑफ मोशन, है ना। तो रेडियस और अल्ना फ्रैक्चर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है पेशेंट को, कि उंगलियां हिलाना कम कर देता है क्योंकि पेन बहुत होता है, रिस्ट की मूवमेंट कम कर देता है और एल्बो मूवमेंट भी कम हो जाती है, बिकॉज पेशेंट, कोई भी फ्रैक्चर में पेशेंट जब इमोबाइल होता है तभी उसको ज़्यादा आराम मिलता है, तो उसकी मोबिलिटी को वापस लाने के लिए आपको रिड्यूस करना है। तो ये अपने गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट है ना। अपन ये सब पढ़ रहे हैं तो अपन को ये भी सीखना है कि भाई ट्रीट कैसे करना है, तो क्यों करना है, तो क्यों करना है वो ये है, मतलब रैशनल फॉर ट्रीटमेंट। रैशनल ये है कि आप पेशेंट को इस तरीके से ट्रीट करो कि उसकी रिस्ट है वो सफिशिएंट पेन फ्री मोशन दे एंड स्टेबिलिटी टू परमिट वोकेशनल ए वोकेशनल एक्टिविटीज़ इन ऑल एज ग्रुप। मतलब कि पर्सन को जो भी करना है, उसके दिमाग में जो भी आ रहा है और एक नॉर्मल पर्सन जो चीज़ कर सकता है वो अपना पेशेंट भी करना चाहिए आफ्टर यू हैव ट्रीटेड इट, है ना। तो अगर ऊपर से एक अम्ब्रेला फाउंडेशन की तरह अपने दिमाग को देखें तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो मेडिसिन में, है ना, या सर्जरी में, कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप उसको इस हिसाब से पढ़ो कि आपको सोचना है वो पेज पढ़ते हुए कि भाई कल मेरे पास एक पेशेंट आने वाला है, इस पेज में जो लिखा है वही प्रॉब्लम लेके, है ना। तो मैं उसको किस तरीके से देखूंगा, मैं उस इंसान में क्या क्या देखूंगा और उसको मैं ट्रीट कैसे करूंगा, मुझे उस पर्सन में क्या क्या देखना है जिससे मैं उसकी हेल्प कर सकूं, है ना। तो अगर आप ये एक एटीट्यूड लेके पढ़ोगे तो आपको आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि अपना सब्जेक्ट ऐसा है, टोटल 19 सब्जेक्ट पढ़ने में आप एंड तक आते आते आप बोर हो जाते हो, बहुत लोग छोड़ देते हैं या बहुत लोग पीजी तक जाते भी नहीं, क्योंकि लोग क्या है एक सही एटीट्यूड से नहीं पढ़ते हैं। अगर आप एक सही एटीट्यूड से इन सब्जेक्ट्स को ले रहे हो तो आपको आगे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, और आगे जब आप पीजी ज्वाइन करोगे, कंसल्टेंट बनोगे, प्रोफेसर एचओडी बनोगे, और आपके पास लोग जब वापस आएंगे एक बार ट्रीटमेंट के बाद कि यार इस डॉक्टर ने सही से ट्रीट किया था, इस डॉक्टर के कारण आज हमारी लाइफ वापस नॉर्मल है, जो हमने सोचा नहीं था पहले, तो आपको एक फीलिंग अलग ही आती है। वंस यू एक्सपीरियंस दैट फीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन इट्स एन एडिक्शन, है ना। यू वांट टू फील इट अगेन एंड अगेन। तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो, सोचो उसके बारे में कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को और इसको कैसे पढ़ें और इससे हम किसकी हेल्प कर पाएँ। अगर इवन इफ यू आर हेल्पिंग वन पर्सन ऑल थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, योर लाइफ इज़ अमेजिंग, क्योंकि why not, because there are many people that want to harm others, there are many people that want to make everybody sad, there are many people who want to step on others people's back and get success in their life, but if you choose the right way, it's a happy feeling for you also and for others also, है ना। So always try to be a good person and a good doctor. Now there's a universal classification based treatment. तो इसको आपको मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो कोई एक नॉन आर्टिकुलर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, है ना, कोई भी फ्रैक्चर जो आर्टिकुलर सरफेस में जा नहीं रहा है और जो बोन्स डिस्प्लेस नहीं है, तो उसको आप एक कास्ट या स्प्लिंट से इमोबिलाइज कर सकते हो, है ना। तो
आप में से किसी को भी कास्ट और स्लैब में फ़र्क पता है क्या रहता है? ठीक है, आपने कभी कोई कास्ट या स्लैब लगाया है? जो प्लास्टर बोलते हैं अपने ऑर्थोपेडिक्स में, आप में से किसी ने कभी लगाया है कोई प्लास्टर? नहीं लगाया है। तो कोई भी प्लास्टर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जैसे सपोज मेरा ये हाथ टूट गया है ना, तो एक प्लास्टर ऐसा होता है जो सिर्फ आधा होता है, आधे हाथ को ही कवर करेगा, पूरा कवर नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड अ स्लैब, है ना। और जो पक्का प्लास्टर होता है जो अपन बोलते हैं लोग, जिस पे नाम लिखते हैं अपना, गेट वेल सून, हार्ट बना के एरो डाल देते हैं अंदर, है ना, वो वाला कास्ट रहता है, तो पूरा पूरा रहता है वो, है ना, पूरा। तो कोई भी नॉन आर्टिकुलर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है उसमें आप कास्ट या स्प्लिंट लगा सकते हो। कोई नॉन आर्टिकुलर डिस्प्लेस्ड है कि आर्टिकुलर लाइन में नहीं जा रहा पर फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो उसको क्लोज रिडक्शन एंड कास्ट एप्लीकेशन करोगे। क्लोज रिडक्शन क्या होता है? आपने मूवीज या कहीं पे हम लोग को इमरजेंसी में देखा होगा कि पेशेंट टूटे हुए हाथ के साथ आया तो हम उसको खींच के जगह पे लाने की कोशिश करते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज रिडक्शन। परक्यूटेनियस पिन और फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन आप कर सकते हो, है ना। तो जैसे अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर्स में आपको अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट्स होते हैं। अब कोई फ्रैक्चर ऐसा है जो आपकी स्किन फाड़ के बाहर आ गया, उसकी बहुत सारे बोन के पीसेज हो गए, तो आपको दिख रहा है कि यार मैं कांच लगाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्लास्ट लगाऊंगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, हड्डी को मतलब हाथ को हिलाने का कोई मतलब नहीं कि ऑलरेडी सब फटा हुआ है, और खींचोगे और ब्लड निकलेगा, पेशेंट वहीं लुढ़क जाएगा, है ना। तो जैसे अलग आप और आगे पढ़ोगे इसको एडवांस में, तो आपको पता चलेगा कब प्लेट लगानी है, कब उसको सिर्फ स्क्रूज से फिक्स करना है, कब इसको खोलना है, कब नहीं खोलना है ना, कब चीज़ें प्रिजर्व करनी है। तो ये क्लासिफिकेशन ऐसा रहता है इससे ट्रीटमेंट का, है ना। अब ये आप जो देख रहे हो ये स्लैब लगा हुआ है, आप देख रहे हो कि जो प्लास्टर है वाइट कलर की जो आपकी मोटी लाइन दिख रही है, दैट इज द प्लास्टर स्लैब। वो एक ही साइड है तो आप एक्सेस से भी बता सकते हैं कि भाई ये स्लैब लगाया है और कास्ट नहीं लगाया, है ना। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिकॉज एनीबडी इन द फ्यूचर माइट आस्क कि भाई कास्ट और स्लैब का फंक्शन क्या रहता है, कास्ट और स्लैब में डिफरेंस क्या रहता है। तो हम लोग फर्स्ट ईयर मतलब अभी पीजी में आए 4-5 महीने पहले, तो हमारे सीनियर्स ने हमको सबसे पहले चीज़ यही सिखाई, बिकॉज एनी थिंग दैट यू एंटर इनटू इन योर लाइफ, अगर आपको उसके बेसिक्स ही नहीं पता तो आपको आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं, है ना। जैसे हमारा पहला दिन था, हम लोग आए, एक फ्रैक्चर केस था, शायद मेरा पहला केस रेडियस का ही था जो मैंने देखा था, तो किशन बॉस ने भी मेरे को यही सिखाया था कि भाई इस पे तू स्लैब लगाएगा कास्ट लगाएगा, स्लैब और कास्ट में फ़र्क क्या होता है। तो मतलब उन्होंने जो मुझे सिखाया मेरे को अभी तक याद है और लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, क्योंकि कोई आपको ढंग से समझा रहा है, उसको सिखा रहा है, तो आप अगर उस पर ढंग से ध्यान दे रहे हो और सोच रहे हो कि भाई ये बंदा ऐसे क्यों सिखा रहा है, इन्होंने ये क्यों बोला, है ना, तो आपको याद रहता है हमेशा। तो जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, आप भी अगर इसके बारे में आगे आके रिसर्च करो, आप पढ़ो, तो आपको भी पता चलेगा कि भाई ठीक है इन्होंने ये ऐसा क्यों पढ़ाया, अपन ने इसमें कास्ट क्यों नहीं लगाया, स्लैब ही क्यों लगाया। कास्ट लगाने में मेजर प्रॉब्लम ये रहता है कि कोई भी फ्रैक्चर जो क्लोज्ड है, आपको पता नहीं कि अंदर कितनी वेसल्स टूटी हैं या कितना ब्लड लॉस हो रहा है। कास्ट लगाने से एक कॉम्प्लिकेशन ये रहता है कि आपको पता नहीं है आप कितने प्रेशर से उस कास्ट को लगा रहे हो, एक अंदाज़ा रहता है, बस एक्यूरेसी नहीं रहती है। तो हो सकता है कि वो पार्ट आपके लिम्ब का पूरे टाइम प्रेशर में रह रह के नेक्रोज हो जाए, है ना, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, विच इज़ अ डेडली कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी फ्रैक्चर। तो इसलिए स्लैब्स लगाते हैं, है ना। ये आपको जो ये परक्यूटेनियस फिक्सेशन दिखाया है ना, ये पिन फिक्सेशन जो है, वो पिन फिक्सेशन अपन ऐसे करते हैं, ये जो वायर्स हैं इसको के वायर्स बोलते हैं, है ना। तो कोई भी फ्रैक्चर जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप डायरेक्ट ड्रिल में वायर डालो और सीधा बोन में डाल दो, वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है ना। दो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स है, सपोज आप देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे ये दो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स है, अब यहाँ पे ये पिन नहीं होती तो फ्रैगमेंट हिलते रहते किसी भी फोर्स के कारण, पर वो पिन है तो उन फ्रैगमेंट्स को पकड़ के रखी है, स्टेबिलिटी दी है। और ह्यूमंस की एक बहुत अच्छी रीजनरेशन कैपेसिटी बोन्स में है, बोन्स के बीच में आप गैप रख दो, है ना, पर उनको इमोबिलाइज रखो, तो बोन्स एक दूसरे के बीच में बढ़ के ग्रो करती है ना। एक कंसेप्ट रहता है इलिजारो फिक्सेटर करके। तो सपोज कोई एक पेशेंट, ऑफ टॉपिक जा रहे हैं अपन, पर कोई एक पेशेंट है जिसका एक पाँव छोटा है दूसरा पाँव बड़ा है, और आपको पता है कि प्रॉब्लम फीमर बोन में है ना, तो आप उस फीमर को बीच में से काट के उस उन दोनों पार्ट्स को अलग पकड़ के, है ना, रख सकते हो, और वो बोन अपने आप रीग्रो करके लेंथ वापस दूसरी बोन की तरह लाएगी। तो काफ़ी प्रिंसिपल्स हैं फ्रैक्चर मैनेजमेंट के। तो बेसिक पॉइंट ये है कि अगर बोन्स के बीच में गैप है तो ऐसा नहीं है कि वो गैप हमेशा रहेगी, वो बोन्स के बीच में गैप फिल होकर वापस बोन बनेगी, पर वो क्यों बनेगी, कैसे बनेगी, और उसको बनवाने के लिए अपने को क्या क्या करना होगा, वो आपको पढ़ के आना ज़रूरी है, ये अपना काम है बीइंग अ डॉक्टर, है ना। नाउ इंस्टेबिलिटी,
सब कुछ आपने पढ़ लिया, आपने फ्रैक्चर रिड्यूस कर लिया, पर ज़रूरी नहीं है कि आपने ढंग से रिड्यूस किया हो। पेशेंट स्टेबिलिटी में भी जा सकता है, इंस्टेबिलिटी में भी जा सकता है। इंस्टेबिलिटी मतलब क्या कि इनिशियल डॉर्सल एंगुलेशन ऑफ मोर देन 20 डिग्री, ठीक है। तो ये अपना वोलर पार्ट है, ये डॉर्सल पार्ट है। अगर डॉर्सल एंगुलेशन 20 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है तो एक इनस्टेबल फ्रैक्चर मैनेजमेंट किया है आपने, क्योंकि आप अगर एडवांस में और पढ़ोगे तो अपना हाथ का मूवमेंट जो ये है और ये वाला है, तो जो डॉर्सल मूवमेंट है वो अपने ज़्यादा काम आता है थ्रू आउट द डे इन अ नॉर्मल डेली रूटीन। ये मूवमेंट इज लेस इंपॉर्टेंट, दिस मूवमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो डॉर्सल एंगुलेशन ऑफ मोर देन 20 डिग्रीज विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपका ये मूवमेंट ही अटक रहा है तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाओगे, है ना। डॉर्सल मेटाफाइसल कम्युनिकेशन है ना, इंट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है, एसोसिएटेड अल्नर फ्रैक्चर है, वो भी एक इंस्टेबिलिटी हुई, क्योंकि एक बोन टूटे फिर भी सही रहता है, दोनों बोन टूट गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि दो ही बोन्स हैं, है ना। 50% इज बेटर दैन 100% लॉस, है ना। पेशेंट एज ओल्डर दैन 60 ईयर्स इज अ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि एज योर एज प्रोग्रेसेस आपकी बोन हीलिंग भी कम हो जाती है ना। आपका कैल्शियम के डिपॉजिट भी बॉडी में कम होने लगते हैं। आप जनरली किसी को चाहिए नहीं कि बुढ़ापे में ये सब चीज़ें हों, है ना। हर तरीके से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, है ना। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ये है कि स्टेबल फ्रैक्चर्स कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड विद क्लोज रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन, इनिशियली विद अ स्प्लिंट एज वी हैव डिस्कस, फॉलोड बाय अ कास्ट, है ना। तो स्प्लिंट आप 15 दिन तक लगा के रखो, 21 दिन तक लगा के रखो, उसके बाद आप एक एक्सरे करवा लो, आपको पता चल जाएगा भाई बोन कैसे जुड़ रही है ना। अगर अच्छे से जुड़ रही है तो कास्ट लगा के 1 महीने तक इमोबिलाइज कर दो, है ना। क्लोज रिडक्शन एंड कास्ट एप्लीकेशन कैसे करते हैं ये चीज़ें, फेयरली सिंपल है। सबसे पहले डिसइंफेक्शन करो, फ्रैगमेंट्स अलग अलग हैं फ्रैक्चर में, तो उनको पहले तो जगह पे लाओ, है ना। उसके बाद उनको रिड्यूस करो, जगह पे लाके उनको ऐसे बिठाओ कि वो वहीं पे रहें। उसके बाद प्रोनेट करके फ्रैक्चर को लॉक कर दो और एप्लीकेशन कर दो कास्ट का। बस यही ट्रीटमेंट रहता है मेजरली ऑर्थोपेडिक्स में, तो क्लोज रिडक्शन वाली चीज़ों में। वंस द फ्रैक्चर हैज बिन रिड्यूस्ड, आप क्या क्या करोगे पेशेंट के साथ, क्या क्या देखोगे। तो टेक एन एक्सरे इमीडिएटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द कास्ट। इफ रिडक्शन इज नॉट satisfactory, another attempt to achieve accurate reduction should be made। पेशेंट जब तक आपके सामने है तब तक आप भले 10 बार ट्राई करो, पर उसको सही करके रहो। आपको इस चीज़ में नहीं आना है कि मेरे से पहली बार में नहीं हुआ तो मैं पेशेंट को कैसे बोलूँगा, उसके अटेंडेंट्स को कैसे बोलूँगा कि यार मेरे से गलत हो गया। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ ईगो इन योर माइंड व्हेन यू आर डॉक्टर, क्योंकि अगर आप ईगो में आ गए तो सामने वाला तो बचने ही नहीं वाला, है ना। तो हो सके उतने ज़्यादा अटेम्प्ट लो, बट पेशेंट के सेटिस्फैक्शन और पेशेंट के हित में काम करो, है ना। इफ देर इज एनी सर्कुलेटरी एम्बेरसमेंट, स्प्लिट द कास्ट अलोंग द डॉर्सम ऑफ इट्स एंटायर लेंथ। अब कास्ट लगाने के बाद जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, आपको क्लिनिकली लग रहा है कि पेशेंट की उंगलियों का कलर चेंज हो रहा है, पेशेंट को उंगलियों में झंझनाहटी हो रही है और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, कास्ट को वापस खोलो, उसको वापस सही से लगाओ, है ना। उसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि एक बार आपकी एनाटमी का लॉस हो गया उसके बाद उसको वापस लाना इज इम्पॉसिबल, बिकॉज वंस कोई चीज़ आपकी सड़ने लगती है बॉडी में, गैंग्रीन होता है, गैंग्रीन के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। प्रेशर नेक्रोसिस पढ़ा हुआ है, एक बार टिश्यू डाई होना स्टार्ट हुआ फिर उसका कोई रिवर्सल नहीं रहता है। एलिवेट द आर्म विद द फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स, है ना। कोई भी लिम्ब के फ्रैक्चर का प्रिंसिपल है कि आप उसको जब भी ट्रीट कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो लिम्ब को हमेशा एलिवेशन में रखना है, क्योंकि ब्लड ग्रेविटी के थ्रू पीछे ट्रैक होगा, है ना। अगर आप फ्रैक्चर की साइड पे ही ब्लड को जाने दे रहे हो तो लोकल हीलिंग में भी प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को पेन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी फ्रैक्चर से भी लड़ रही है, आपने जो ऑपरेशन किया है उससे भी लड़ रही है, जो ऊपर से इम्प्लांट डाला है उससे भी लड़ रही है, प्लस ऊपर से ब्लड आके उधर प्रेशर और बढ़ा रहा है, तो और प्रॉब्लम होगी। तो 4 में से एक पॉइंट आप सिर्फ लिम्ब एलिवेशन से कम कर सकते हैं, व्हाई नॉट, इट्स अ सिंपल टेक्निक, है ना। एलिवेट ये तो हो गया। टेक एक्सरे अगेन ऑन द 5th and 10th डेज, चेक फॉर मेंटेनेंस ऑफ पोजिशन। ना इट इज़ फेयरली पॉसिबल कि आपने फ्रैक्चर को रिड्यूस कर दिया पर वो बाद में भी हिल गया, है ना। क्यों हिलेगा वो, आपने स्लैब सही से अप्लाई नहीं किया, या आपने कास्ट सही से अप्लाई नहीं किया, या पेशेंट की इनहेरेंट टेंडेंसी आपकी बातें ना सुनने की और अपनी मस्तियों में लगा हुआ उसने वापस फ्रैक्चर हिला दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती है, इससे हमेशा चेक करते रहो कि आपने काम जो किया है वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है ना। फिजिकल थेरेपी दो, पेशेंट को हीट दो, जेंटल मसाज करवाओ, नॉट इन एवरी केस एडेशन बन जाते हैं।
वाटर मसाज एंड एक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर द फिंगर्स, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर, है ना। पेशेंट की मोबिलिटी इज द मेन थिंग वंस यू हैव ट्रीटेड द पेशेंट इन ऑर्थोपेडिक, है ना, क्योंकि अपन ने उसको ट्रीट ही इसलिए किया है कि वो मोबिलाइज कर पाए अपनी चीज़ों को वापस, है ना, लिम्स को। अगर वही नहीं आप करवा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब आपने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर हो, फिर भी आपके हाथ में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और आएंगे ही, है ना। एंड ये किसी भी सर्जन का अ, नाम तभी बनता है जब वो कॉम्प्लिकेशंस को संभाल पाता है ना, क्योंकि नॉर्मली तो हर चीज़ सब ट्रीट कर सकते हैं, पर किसी चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस आए उसको आप कैसे संभाल रहे हो, उसको कैसे सही कर रहे हो, वो ही एक चीज़ एक सर्जन का नाम बनाती है ना। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है, फेलियर ऑफ लॉस ऑफ रिडक्शन आ रहा है, स्किन कॉम्प्लिकेशंस हो गए, लोकल फुट टेंडरनेस हो गई या ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गया, कुछ भी हो सकता है। टेंडन अडेशंस एंड एंट्रैपमेंट हो गया, पेशेंट को आपने सही से मोबिलाइज नहीं कराया, पेशेंट ने आपके 10 बार समझाने के अगेंस्ट जाके और जाके किसी अखाड़े में किसी से मालिश करवा ली हाथ की कि भाई हमारा फ्रैक्चर तो भाई हो गया सही, तू भाई मालिश कर दे, मैं भी पहलवान बन जाऊँ। पहलवान तो नहीं बनता, वो फेविक्विक की तरह चिपक जाता है, फिर उसको पकड़ के तोड़ना पड़ता है। उसमें पेशेंट रो जाता है बहुत बार, पर करना पड़ता है ना, आपको अच्छा लगता है ना उसको अच्छा लगता है। बट ये है, तो आपकी जब भी ऑर्थो पोस्टिंग लगे आगे फ्यूचर में जाके ऑर्थो डिपार्टमेंट में पक्का आना, क्योंकि ये सब चीज़ें जितनी पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगती है उससे ज़्यादा करने में इंटरेस्टिंग लगती है ना। कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव पाल्मर फ्लेक्शन, नर्व कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वैस्कुलर इंजरी हो सकती है ना। करंट ट्रेंड ये है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में रेडियस के कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विद क्लोज रिडक्शन एंड कास्ट एप्लीकेशन है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक तो मैंने आपको दिखा दिया, डायरेक्ट पिनिंग कर सकते हो। एक्सटर्नल फिक्सेशन में आप ये कर सकते हो, खोल दिया आपने एक एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दिया, एक्सटर्नल फिक्सेटर के साथ पिनिंग कर सकते हो। बोन ग्राफ्टिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑर्थोपेडिक। आपकी कोई भी बोन, कोई भी फ्रैक्चर ऐसा है जो 2 महीने से 3 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपको पता है कि ऑपरेट कर दोगी तो भी बोन जुड़ेगी नहीं, क्या करो, बॉडी में से और कहीं से बोन ले लो, नॉट और कहीं से, या तो इलियाक क्रेस्ट से लो या तो फिबुला से लो मेजरली, वो बोन को काटो, उसका चूरा करो और उस जगह पे भर दो, बोन अपने आप वापस बननी स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। बोन ग्राफ्टिंग कर सकते हो, प्लेट्स लगा सकते हो, प्लेट्स, स्क्रूज, ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, काफ़ी डेप्थ में बाद में कभी पढ़ेंगे उसके बारे में। रिस्ट आर्थ्रोस्कोपिकली भी कर सकते हो। लेमैन टर्म्स में पेशेंट पूछता है आपसे हमेशा कि सर दूरबीन से करोगे या चीरा लगा के करोगे, दूरबीन से लगाना इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड अ गुड कंसेप्ट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू पर्टिकुलरली इन रिस्क फैक्टर, क्योंकि जगह बहुत कम मिलती है, कंपार्टमेंट्स छोटे छोटे होते हैं, बहुत लोग करते नहीं है, बट इट्स स्टिल अ पॉसिबिलिटी, है ना। तो आर्थ्रोस्कोपिकली आप कर सकते हो ट्रीटमेंट। ये अपना क्लास था रेडियस अल्ना फ्रैक्चर्स पे। आप इसके बारे में वापस जाके पढ़ भी सकते हो।